Now today I am doing eigenvalue and eigenvector where the values are repeated. Eigenvalue and eigenvectors. Eigenvalues and eigenvectors. Okay. So let me take a random question. Exactly. तो क्वेश्चन आया था आपको, find the eigenvalues and corresponding corresponding eigenvector corresponding eigenvector. And now here some matrix will be given here. The matrix will be 6 minus 2 plus 2 minus 2 3 1 2 minus 1 3. This is your matrix. What we have to find out? What we have to find out? Bully, come on. Eigenvalues. And eigen. आप लोग ऐसा मेरे को ऐसा दिख रहा, कंपटीशन दिख रहा, उन्होंने बोलते क्या कि बोल के इनो रुक जा रहा है, इनो बोलते क्या कि वो बोल के उन्होंने रुक जा रहा है, ऐसा मत करो. Okay, sir. Both of you reply. Now solution. Let us assume that this our value is the value of a. What is that value? 6 minus 2 plus 2 minus 2 3 1 2 minus 1 3. Now we can find out the characteristic equation. The characteristic equation of capital A is magnitude of a minus lambda I is equal to 0. You have to do it. This one individually also you can do it. Choice is yours, or directly if you want to find out, that is also possible. So then magnitude of, where is the change? I said diagonally it will change. 6 minus lambda minus 2 plus 2. This is minus 2. This is 3 minus lambda. This is 1. This is 2. This is minus 1. This is again 3 minus lambda. This is determinant and this is equal to 0. What is the rule? How to expand the determinant? Plus, minus, plus will be the rule. Okay? Okay? Yes, sir. This implies that when we are applying for first element 6 minus lambda, corresponding row and column we have to neglect. 1 second. 1 minute. Hello?
Okay, so a minus lambda I value we are finding. This is if you take 6 minus lambda. You know the process now directly. Can we do it directly? Corresponding row No, and sir. column we have to neglect. Oh, okay. Let me do it. Otherwise, let me do it in detail. ठीक है? Okay. 6 माइनस लैम्डा से आपको मैं डिटर्मिनेंट कई बार सिखाया था अभी तक, मगर फिर भी एक बार आप देखो. Mod of corresponding column and row we neglect. Left off is what? 3 minus lambda. This is 1. This is minus 1. This is 3 minus lambda. Second element with minus sign because we have already minus. Minus into minus plus. Column and row we neglect. This is minus 2. This is plus 1. This is 2. This is 3 minus lambda. This is closed. Plus 2 into again column and row corresponding. ये एलिमेंट जिसमें है वो कॉलम और वो रो को नेग्लेक्ट करने के बाद क्या था बोलिए. -2 3 minus lambda plus 2 1 and then equating to 0. करेक्ट है? हेलो, Yes, sir. both of you reply please. AD minus BC. AD minus BC. 2 by 2 matrix are determined. Yes, sir. AD means 3 minus lambda whole square. This is AD. Minus is there in the formula, but if you multiply these two, one more minus sign we are getting. That minus into this minus will become plus. Close it. Plus 2 into again AD. It is minus 2 times 3 minus lambda minus BC. It is minus 2 plus 2 into again AD is minus 2 minus 2 into 3 minus lambda is equal to 0. Our target is to get the eigen value, lambda value. Since the order is 3, we'll get 3 eigen values. Compulsory. We expand this one by using a minus b whole square. A square is 3 square 9. B square is minus lambda whole square is lambda square. Minus 2ab is minus 6, 3 to the 6 lambda. It is plus 1. Plus 2 into, we can multiply one more time. Oh, it is minus 6 minus 6 plus 2 lambda minus 2 plus 2 into, it is minus 2, it is minus 6, ये होता minus 6. If you multiply these two, and if you multiply one more time, minus into minus plus 2 lambda equating to 0. This implies that what we have to do, simplify this one. 6 minus lambda into, this is lambda square minus 6 lambda, 9 plus 1 is 10. 10. This is close, plus 2 into, here we write 2 lambda first here, and this together becomes minus 8. Plus 2 into, if you add these two values, you will get minus 8 plus 2 lambda is equal to 0. 6 we have to multiply with this one, with this one, and with this one. तीनों से भी multiply कर. Lambda को भी इससे भी, this one and this one. That's the multiplication rule. Each and every term we have to multiply. This is 6 lambda square minus 36 lambda, because 6 6 is 30. Go down नीचे जाइए. 60. 10 6 is 60. It is minus lambda cube minus into minus plus 6 lambda square minus 10 lambda. This is 2 2 is 4 lambda minus 8 2 is 16 minus 8 2 is 16 plus 4 lambda. Okay.
तो यहाँ पर एक माइनस साइन भी आ रहा है, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, तो बड़ी गलती हो गई, ये -1 भी आना, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, ये माइनस हो गया तो AD 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस BC, मतलब ये थोड़ा स्टेप सही करना पड़ेगा। अदरवाइज वो लैम्डा के वैल्यू पूरे गलत हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस आ रहा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। यस सर। क्वेश्चन थोड़ा भी गलत हो गया तो फिर पूरा ही गलत हो गया। सो यहाँ पर एक माइनस था, तो ये कॉलम रो नेग्लेक्ट हो गया। दिस कॉलम एंड रो नेग्लेक्ट मीन्स यू विल गेट वन मोर माइनस हियर, एंड दिस यहाँ पर भी एक मिस्टेक है। डिटरमिनेट करने आता ना आप लोगों को, दोनों को भी? अभी कर रहा हूँ मैं यस सर। मिस्टेक। यस सर। अभी कुछ तो भी मिस्टेक कहीं है तो देख के बोलिए। मैं तो अभी क्वेश्चन चेक करा रैंडमली, तो वहाँ पर एक माइनस साइन हो गया था, तो उसको तो करेक्शन तो अभी मैं फिलहाल तो कर दिया हूँ। आई थिंक अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। AD is 3 minus lambda whole square -1, because minus into minus plus 1 1 का 1 plus 2 into this is -2 times 3 minus lambda, this is plus 2, this is plus 2 into ये कितना होता बोलिए, बोलिए कमर, अब आप लोग बोलिए, बोलिए नेक्स्ट स्टेप बोलिए। It is 2 minus हाँ बोलिए, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 2 करेक्ट, minus 2 into 3 minus lambda. दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग। यस, it is 2 minus into minus plus 2 minus 2 into 3 minus lambda AD minus B. Okay, this implies 6 minus lambda as it is, 6 minus lambda as it is, इसको एक्सपेंड करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू दिस इज इफ यू मल्टीप्लाई -6 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 इंटू दिस इज 2 -3 2 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। This implies 6 minus lambda as it is, lambda square minus 6 lambda, 9 minus 1 is 8 plus 2 into this is 2 lambda, this is -6 plus 2 is becomes -4 plus 2 into कितना हो गया -4 plus 2 lambda equating to 0।
6 से ये पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इज द 36 लैम्डा, 8 6 द 48, फिर माइनस लैम्डा से भी पूरा को मल्टीप्लाई करना, माइनस लैम्डा क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर minus 8 lambda. This is 2 to the 4 lambda minus 8. It's also minus 8. This is 2 to the 4 lambda is equal to 0. 1. This implies minus lambda cube as it is. Six plus 6 is 12 lambda square. Is minus 36. You can add this one minus 36 minus 8 कैलकुलेटर में करें, ये कैंसिल हो जाता है, ये minus 8 lambda, ये 4 plus 4 8 lambda will be cancelled. So then minus 36 lambda will be left out. And the constant terms are 48 minus 16. कितना 32 ना, equal to 0. And we have to multiply with minus sign. This is lambda cube because lambda cube positive होना है. Minus 12 lambda square. All the sign will change. Plus 36 lambda minus 32 equal to 0. अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रायल और एरर मेथड से लैम्डा के रैंडम वैल्यूज, ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 ऐसा रख के चेक करना कि कौन सा वैल्यू ऑफ लैम्डा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. ठीक है, केली हैमिल्टन थ्योरम में भी यही सब करना है आपको. So I repeat once again, we have to take the random value. Randomly lambda is equal to 1 minus 1 2 minus 2 3 minus 3 ऐसा चेक करते जाएंगे अपन. मैं नेक्स्ट पेज लेके ये फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा. दिस प्रॉब्लम इज a lengthy problem, not a short important question है. माइनस 32 वेटिंग टू 0. तो 1 माइनस 1 में तो नहीं होता, 2 2 में देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 अगर रखे तो ये होता 2 4 3 8 and this is 4, 12 for the 48, ये 72 डेफिनेटली सेटिस्फाई हो जाता. लैम्डा इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रखेंगे, इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1, दिस इज माइनस 12 लैम्डा के कोफिशिएंट्स, ये 36, ये यहाँ पर माइनस 32. द फर्स्ट वैल्यू विल बी 0, एडिंग 1 plus 0 is 1, 2 1 are 2. Once again adding it is minus 10, minus 10 to the minus 20. Once again adding it is 16, 16 to the 32. Definitely verification क्या होता, the last value will become 0. The last value will become 0. ये जो कोफिशिएंट्स आपको मिले वो लैम्डा स्क्वायर के है, ये लैम्डा वाला टर्म है, and this is 16 is equal to 0. Now we should take their factors. It means that lambda square 10 lambda can be written as minus 8 lambda minus 2 lambda plus 16 equal to 0. Factors ले रहा हूँ. Lambda common, Okay, sir. lambda minus 8, it is minus 2 common, lambda minus 8 is equal to 0. So if lambda minus 8 equal to 0, lambda minus 8 if you take common, lambda minus 2 equal to 0. तो टोटली अपने जो आइगन वैल्यूज आए हैं वो क्या है,
आइगन आइगन वैल्यूज आर, एक तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी लैम्डा 2 है, तो ऐसा है आपको वैल्यू 8, लैम्डा इज इक्वल टू 8 कामा 2 कामा 2, लैम्डा इज इक्वल टू 8 कामा 2 कामा 2। यहाँ पर एक वर्ड अपन ऐड कर सकते हैं, वो क्या होंगे, क्या होंगे वो, बोलिए, कैन यू रीड दिस वन, कैन यू रीड दिस वन। Repeated eigenvalues. लैम्डा के वैल्यू रिपीट हो रहे हैं ना, Yes. हो Yes, रहे sir. नहीं, तो दिस इज कॉल्ड रिपीटेड आइगन Yes, वैल्यू। sir. रिपीटेड आइगन वैल्यूज में कैसा अपन आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं वो भी देखिए प्रोसेस। वी गॉट वन स्टेप इज ओवर, दैट इज आइगन वैल्यूज ओवर। नेक्स्ट आइगन वेक्टर के लिए केस वन से स्टार्ट, केस वन, व्हेन लैम्डा वैल्यू इज 8 एंड देन करस्पॉन्डिंग वेक्टर जो अपन अज्यूम करते हैं, कैपिटल X1 इज इक्वल टू, हाउ टू टेक X1, we have done this in the last class also, X1 X2 X3, इसको कहाँ पर रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू 8 को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर 6 minus 8 is minus 2, okay, 6 minus 8 is minus 2, minus 2 plus 2 होता है, ठीक है, हो जाता ना, -2 -2 plus 2। now next, if lambda value is 8, minus 2, 3 minus 8 is minus 5, minus 2 minus 5 minus 1, minus 2 minus 5 minus, now next, if lambda is 8, 2 minus 1 minus 5, ये आ गया आपको केस वन। एंड देन आइगन वेक्टर जो है आपका Yes, वो sir. x1 x2 x3, आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, आप आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे आप, 0 0 0। नाउ इफ यू सी, बहुत लेंदी है सर। बहुत लेंदी, अभी तो हाफ ऑफ द पार्ट भी नहीं हुआ। हाँ, तीनों इक्वेशंस को अपन, ये रोज कौन से भी ब्यूटीफुल रोज नहीं है, देखिए सब अलग अलग है, मतलब कोई भी दो Yes, sir. इक्वेशंस को सॉल्व कर लिए तो हो जाता है। -2x1 -2x2 +2x3 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, -2x1 -5x2 -x3 इज इक्वल टू 0, ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन भी आ जाती, बट अपन एक काम करेंगे, डायरेक्टली 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, अननेसेसरी थर्ड इक्वेशन लिख के भी कोई फायदा तो नहीं। तो सॉल्विंग प्रोसीजर में मैं आपको पहले ही बता दिया था, x1 बाई -x2 बाई देन x3 बाई x1 मीन्स वी हैव टू नेग्लेक्ट द x1 कोफिशिएंट, x1 को टोटली नेग्लेक्ट करके AD माइनस BC, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 माइनस is there in the formula, 2 5 are 10, so minus into minus plus 10। now x2 के लिए x2 को नेग्लेक्ट करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4, x3 की नेग्लेक्ट करेंगे, 10 होता, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4, so then x1 by 12 is equal to x2 by, ये 6 को आप डिनोमिनेटर में भिजा दीजिए, माइनस सॉरी x3 by 6, 6 1 जा 6 1 जा 6 2 जा, मतलब अपना जो पहला आइगन वेक्टर आया वो क्या है, x1 x2
x3 is equal to what we will get here 2 minus 1 plus। आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं -2 plus 1 minus, because you can multiply the entire column with minus sign। तो ये आपका केस 1 सॉल्व हुआ, ठीक है। नाउ मूविंग टू द केस 2। केस 2 इज द केस वेयर द वैल्यूज आर रिपीटेड। अब उसको कैसा करना है, फिर से एक बार आप देखना है। अब अपने को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर हो सकते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशन मतलब ये आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है डिटेल में। तब तो कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स तो इजी रहता। अब एक साइकोलॉजिकली माइंड बना लो, मैट्रिक्स इजी है, बस खत्म, आपको आ जाता है हमके लिए। Now Okay. case 2 and case 3 will be together because values are repeated now when lambda is equal Yes, to sir. 2। तो एक ही बार करना है, और जो वेक्टर है वो यहाँ पर लेना लिखना है। x2 लिखे तो फिर वो x2 हो जाता है, x2 x3 एक साथ आ जाते हैं अभी। Now if you put Okay, lambda sir. is equal to 2 here, if you put lambda is equal to 2 here, यहाँ पर रखना है ये इसमें, इसमें इधर। तो 6 minus 2 is 4 minus 2 plus 4. 2 हो जाता, ठीक है। 4 minus 2 plus 2, 4 minus 2 plus 2, and next if lambda value is 2, 3 minus 2 is 1, so minus 2 1 minus 1, minus 2 1 minus, then next if lambda value is 2, 2 minus 1 1, 2 minus 1 plus 1 into that vector we have to assume as x1 x2। यहाँ पे तो लिखना है, मगर यहाँ पर आप लेट x2 इज इक्वल टू बोल के मत लिखिए, अदरवाइज क्या होता है, रिपीटेड वैल्यू है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। 0 0 0। और एग्जाम में देखिए सिंपल क्वेश्चन तो आता नहीं, आपको पता है, कुछ तो भी कॉम्प्लिकेटेड में देता। अब यहाँ पर ये चीज आप लॉजिक देखिए, फर्स्ट रो विल बी 4 minus 2 plus 2, सेकंड रो विल बी क्या है, -2 1 -1। सेकंड रो और थर्ड रो में क्या डिफरेंस है, खाली माइनस का डिफरेंस है, देखो आप, है ना, -2 plus 2 1 -1 -1 plus 1 है या नहीं है, Yes, sir. है ना, हाँ yes। और फर्स्ट और थर्ड को देखिए, इफ यू मल्टीप्लाई विथ 2 फॉर द थर्ड रो इट विल इक्वल टू द फर्स्ट रो, और सेकंड रो को भी +2 से मल्टीप्लाई करते इक्वल। दीज रोज आर कॉल्ड ब्यूटीफुल रोज। ऐसे रोज जो खाली माइनस से चेंज हो जा रहे, तो ये ब्यूटीफुल रोज रहते। ऐसे केस में आपको इक्वेशन बनाना नहीं, ऐसे केस में आप कोई भी एक रो को ले लेना, कौन सा तो भी एक रो, आपका मर्जी, मैं ये ले रहा हूँ 2x1 -x2 plus x3 इज इक्वल टू 0। आई एम टेकिंग दिस रो। अगर आप फर्स्ट रो लेके करें तो भी वही आंसर आता, सेकंड रो लेके करें तो भी वही आंसर आता, थर्ड रो लेके करें तो भी वही आंसर आता, क्योंकि ये पूरे, इसको बोलते हैं मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में ब्यूटीफुल रोज। यू कैन टेक एनीथिंग, यू कैन गेट द आंसर। अब अपन क्या करना, अब अपने को देखिए, अपने पास मैट्रिक्स एक ही है, आइगन वैल्यू एक ही है, बट वेक्टर्स दो चाहिए, राइट। वेक्टर्स कितने चाहिए, दो चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, दो अलग अलग वैल्यूज को अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, ये रिपीटेड केस में होता, देखिए बाकी ऐसा नहीं होता। x2 इज इक्वल टू k1, x2 इज इक्वल टू k1, ओके, x2 इज इक्वल टू k1, और x3 की वैल्यू को k2 अज्यूम करेंगे। x2 is k1, x3 value k2। So if you put these two values in this equation, अपना ये इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज 1 में रखेंगे तो क्या होता, x1 क्या आता, 2x1, x2 value is -k1, x3 value is +k2 is equal to 0। This implies that 2x1, ये माइनस इधर जाके +k1, और ये प्लस इधर जाके -k2।
ठीक है ना। तो ये जो आपकी x1 की जो वैल्यू आई, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, k1/2 माइनस k2/2। ये आपको किसकी वैल्यू आई है, x1 की आ गई। अभी जो अपन दो डिवाइड करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो अपना वेक्टर बना आइगन वेक्टर, दो केसेस में बनता, x1 x2 x3 which is equal to, we are in the final step now। x1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए आप क्या है, k1/2 माइनस k2/2, और x2 की वैल्यू अपन क्या लिए, k1 लिए, और ये हो गया k2 x3। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब पहले केस में अगर आप k1 कॉमन ले लिए, यहाँ से k1 कॉमन लिए तो इधर बचता 1/2, और k1 कॉमन ले लिए तो 1, यहाँ तो कॉमन अपन k1 है ही नहीं, मतलब 0, प्लस अगर आप k2 कॉमन ले लिए, k2 कॉमन लिए तो यहाँ पर बचता आपको -1/2, इसमें k2 नहीं है बल्कि 0, और ये k2 का कोएफिशिएंट 1। तो फाइनली जो अपनी x2 की जो वेक्टर आई, क्या आई बोले, दिख रहा है यहाँ पर आपको, 1/2 1 0। इसको आप चाहे तो कैसा लिख सकते हैं, और ऑप्शन में इसको मैं पूरों को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर मल्टीप्लाई विथ 2, 1 2 0 भी लिख सकते हैं आप। और जो x3 वैल्यू है, व्हाट इज x3, -1/2 0 1। अगेन इफ यू मल्टीप्लाई विथ 2, इट्स -1, दिस इज 0, दिस इज 2। तो ये फाइनली आपकी जो आइगन वैल्यूज आई, यहाँ पर एक आई थी -2 1 -1, और यहाँ पर आई 1 2 0 -1 0 2। तो इसको बोलते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये क्वेश्चन इतना बड़ा रहता, ठीक है। अभी इसको इसका इसका जो आपका आपके सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म है, देखिए आपके सिलेबस में है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो बोल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन जो अब आगे अपन इसको करेंगे, ये पूरे आइगन वैल्यूज को अज्यूम करके और थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है उसके लिए, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है उसका मैट्रिक्स का। तो अभी तक जो करे वो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन देख लेंगे। ये आइगन वैल्यूज है, सॉरी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करें 3/3 का। वेयर इज द चेंज, गिव मी द आंसर बोथ ऑफ यू। वेयर इज द चेंज, डायगनली द लैम्डा वैल्यू विल बी सबट्रैक्टिंग, ओके। आप लोग आंसर दे दीजिए तो मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। Yes, sir. यस। तो 6 माइनस लैम्डा से कॉलम रो नेग्लेक्ट करके ये पूरा करके अपन जो है ना लैम्डा के वैल्यूज लेके आए। दोज वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन में रिपीटेड आइगन वैल्यू आए, तो where it is not repeated, x lambda is equal to 8, directly we take, and here we have to put lambda is equal to 8, corresponding eigen vector we are getting, easily we are getting। और सेकंड की अगर ये वैल्यू रिपीटेड नहीं होते तो बहुत आसान हो जाता था क्वेश्चन। अपने पास इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 होना है, तो मतलब कम से कम दो वेरिएबल को अज्यूम करना। ऐसा भी हो सकता है आपके पास दो इक्वेशन आते, 3 वेरिएबल होना, तो वो केस में एक वेरिएबल को अज्यूम करना। तो ये जो केस था, आज का जो क्वेश्चन था, रिपीटेड आइगन वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन करें अपन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता। और ये जो पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट, मतलब 6 - 2 + 2 का क्वेश्चन, सेम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा, ठीक है। 6 - 2 + 2 Okay, -2 sir. 1 -3। अब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और कल भी इंशाल्लाह इफ आई गेट द टाइम, जैसा कि आज तो मेरा इरादा नहीं था मगर टाइम मिल गया, देन आई एम टेकिंग द क्लास। If tomorrow again I'm getting the time, definitely I'll share the link and we'll have a class. I'll let you know before Okay. half an hour at least. Okay. Okay? Then thank you. Okay, sir. फाजिला, Thank आपको you. कुछ डाउट है? नो सर। आपको जो रिकॉर्डिंग चाहिए थी ना, वो प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग भेजा दिया मैं। जी अच्छा, आप चेक इट। कर लीजिए, आप चेक नहीं करे अब तक? करी मैं सर।
और दूसरी बात क्या है बोलते हो, अभी यूट्यूब पे जो वीडियो ब्लर होके आ रहे थे ना, उसको हम लोग सही कर दिए अभी। एक हमारी टीम है, उससे अब पूरा उसका वीडियो क्वालिटी को सही करके फिर से अपलोड कर रहे हैं। अब आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में, हर टॉपिक का M1 M2 M3 M4 से हर टॉपिक का, हर JNTU सिलेबस के हर टॉपिक का वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह एक कोशिश है Okay. बच्चों को फायदा पहुंचाने की, दुआ करिए इंशाल्लाह। विल थैंक यू, विल एंड अप द सेशन। Okay. Thank you, sir. Okay.